Hi everyone, a very good morning, guys. What's up? Hi Aishi, hi Aniket. Hellos, Swapna, Maitri, Anurag. Good morning, Jishan. Guys, everyone, please keep your camera on. Amy, Yogita, Yogita, you didn't keep your camera on yesterday as well. Hi Yash, good morning. All settled, guys? कुछ खाया सुबह से? I told you, right? Eat something before ये. Harshita, good morning. Yes, chalo. Fatak say, first of all, what we'll do is, we have some extra class today also. Like, after this, we are going to extend for Sama. So, हम एक बार क्या करते हैं? एक बार revise कर लेते हैं what we have studied. मेरा voice एकदम proper आ रहा है to all of you? Yes, Neeraj? All cool. चलो, let's discuss. अगर अगर by any chance like ICAI ने आपके एग्जाम पेपर में they ask you what are the 6 attributes, जब भी आप अदर एक्सपेंस को ऑडिट करोगे तो what are the 6 attributes? Maitri, do you remember what were those 6 attributes to audit the other expenses? Yes, ma'am. The expenditure should relate to the current period under audit. Correct. Second is कि वो business से related expenditure होना चाहिए, personal नहीं होना चाहिए. It Correct. should be of revenue. It should be revenue expenditure, not capital. Correct. फिर correct head में classify होना चाहिए. And it should be supported by bills, vouchers, and tickets. Correct. And it should be approved by authorized person. Yes. Ramya, how do you do the Yes. audit of rent expenditure? अगर client place पे गए और उनके books पे rent expenditure दिख रहा है, rent for the machinery, rent for the premises, anything, any sort of rent, how do you do the audit of it? हाँ हाँ, लिप रीडिंग नहीं आता है मुझे. चलो, मैं अनम्यूट करके बात करते हैं. Check whether it is agreement should be the 12 months or not. But before the agreement, what will you take? Client को क्या बोलने का? रेंट अग्रीमेंट बिल्स रेंट अग्रीमेंट सबसे पहले क्लाइंट को बोलने का कि मुझे 12 मंथ्स का शेड्यूल दे दो. जो भी आपने रेंट पे किया है, जिस जिस चीज के लिए भी आपने रेंट पे किया है, उसका 12 मंथ्स का शेड्यूल दे दो, ताकि आपको मंथ ऑन मंथ कितना रेंट जा रहा है वो पता चल जाएगा. अलोंग विद द रेंट अग्रीमेंट्स. अलोंग विद द रेंट अग्रीमेंट्स. यस, तो सबसे पहला 12 मंथ्स का शेड्यूल. देन रम्या. एक्सपेंसेस. सॉरी. Expenses, rent expenses, as per the agreement, it is properly recorded or not. Yes. Then रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर होना चाहिए? In whose name? whether it is entity or client name. Correct. Then we have to examine rent agreement as per premises. It should be located in correct premises or not. नहीं, ठीक से पढ़ो वो पॉइंट. कैन यू रीड दैट पॉइंट अगेन एंड टेल अस व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ इट? रम्या हैंग हो गई है. चलो यश, कैन यू कवर द लास्ट पॉइंट? Examine whether agreement contains any escalation clauses. If yes, verify whether rent has been adjusted desired the year as per the agreement. करेक्ट. उसके पहला वाला पॉइंट वाज दिस, दैट व्हाटएवर एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस दे आर पेइंग, इट इज ओनली फॉर द प्रीमाइसेस एंड प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग द business operations, right? Beautiful. Yes, ma'am. Okay, Yash, you cover how do you do the audit of power and fuel? Power and fuel, electricity का खर्चा, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा अगर कंपनी इज पेइंग, so how do you do the audit of it? पहले उनसे 12 मंथ्स का शेड्यूल लेंगे हम. फिर हम Yes. देखेंगे एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं. शेड्यूल के साथ में Then क्या हम आना देख चाहिए था? हाँ यश. सपोर्टिंग इनवॉइसेस. करेक्ट. हाँ, और हम देखेंगे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं है. उसके करेक्ट. बाद में हम चेक करेंगे प्रोविजंस किए हुए हैं उन्होंने या नहीं किए हुए हैं. करेक्ट. उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं उसमें. एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं सच एज? मैम जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली पावर एंड फ्यूल का खर्चा इंक्रीज हुआ है कि नहीं. करेक्ट. बट देयर वाज आल्सो वन पॉइंट कि जहां पर जैसे आपने बोला प्रोविजंस वाला पॉइंट, प्रोविजंस जब लेंगे, अगर सपोज लाइक फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ मार्च यू डिड नॉट रिसीव द बिल, ऑब्वियसली फॉलोइंग मंथ में ही बिजली का बिल आएगा, राइट?
that case you will, हाँ। how will you calculate, how will you check the arithmetic accuracy of the provision? मैम मैम इसमें हमें पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है उसमें। जैसे आपने बताया था कि यूनिट से हम देख सकते हैं, जैसे करेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हाट में इज द यूनिट्स यूनिट आती हैं। कंज्यूम वो मीटर से दिख जाएगा आपको, एंड यस रेट यस यू कैन यस। टेक द रेट और एज पर लास्ट फ्रॉम लास्ट इनवॉइस। last invoice. Beautiful. Okay, Ayushi, how do you do the audit of insurance expenses? Are you in the library? अच्छा, okay, no worries, right? Zishan, can you cover this point, insurance expense का? हम सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी, जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है एंटिटी ने वो लेंगे, और उसके साथ उसका जो वैलिडिटी है, जितना वैलिडिटी है Correct. वो ऑब्टेन करेंगे। एंड देन जो जो भी एक्सपेंसेस जो है वो इंश्योरेंस का, वो क्लासिफाई हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस में कि नहीं, ये देखना। एंड देन जो करंट प्रीपेड पीरियड का, एंड करंट पीरियड, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रीपेड हो सकता है रेंट, यू हैव पेड द इंश्योरेंस मंथली फॉर दैट मंथ ओनली, सो तो फिर तो करंट पीरियड में ही आएगा ना। बट सपोज इफ यू हैव पेड, इफ द कंपनी हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्यू मंथ्स इन एडवांस, तो जो भी एडवांस में पे किया है वो वाला प्रीपेड में आएगा, बाकी करंट मंथ का करंट में आएगा। दिस बाकी करंट में जो है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। स्प्लिट होना चाहिए, यस, करेक्ट, ब्यूटिफुल। ठीक है, स्वप्ना, कैन यू टेल अस हाउ डू यू डू द ऑडिट ऑफ लीगल एंड प्रोफेशनल फीस? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज समरी लेंगे टू एनालाइज सर्विसेज जो कंसल्टेंट ने प्रोवाइड किया था। करेक्ट। अगर मंथली केस ऑफ रिटर्नशिप है, रिटेनरशिप तो अग्रीमेंट, 12 यस, हाँ, तो 12 मंथ फी इज रिकॉर्डेड एज पर एग्रीमेंट या नहीं, उसको हम लोग पहले चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट पे फॉर नॉन रिकरिंग लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर हम सैंपल्स को वेरीफाई करेंगे, और जो 6 एट्रीब्यूट्स हमने जनरल में चेक किए थे उसे हम चेक करेंगे। करेक्ट, ब्यूटिफुल। एमी, कैन यू टेल अस हाउ डू यू डू द ऑडिट ऑफ ट्रैवल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर? एक्सपेंसेस अपन रैंडम बेसिस पे चेक करेंगे, जैसे कि लाइक कुछ भी सैंपल्स वगैरह रैंडम बेसिस पे लाइक सैंपल्स लेंगे लेके, और उसका असर्शंस चेक करेंगे, जैसे कि अकुरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, और ये कंप्लीटनेस के साथ कट ऑफ का भी। एंड देन सेकंड पॉइंट इज, जहाँ पे भी पॉसिबल होता है ऑडिटर समरी लेगा एक्सपेंसेस की, और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा करेक्ट, एज तो पर चेक SF-520 एनालिटिक टू ऑब्टेन एविडेंसेस। रिगार्डिंग व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के किसका एविडेंस मिलता है हमेशा आपको? रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर का। रीजनेबलनेस, राइट? कोई भी लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगा रहे? सी, आप जब क्रिकेट मैच का एनालिटिक्स देखते हो तो एनालिटिकल से फैक्ट नहीं है वहां की ऐसा ही हुआ होगा, वो आपको एक एवरेज कैलकुलेशन करके देते हैं ताकि आपको रीजनेबल लगता है कि हाँ यार वो बॉलर का पिच इतना है, या बैटिंग का ये है, या फिर वो शॉट्स इतना जा रहा है। इट्स अ रेंज, वो कैलकुलेट होती है, तो आपको दिखता है कि हाँ हाँ ये रीजनेबल है। सो रीजनेबल का एविडेंस मिलता है आपको जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो। यस, एंड देन लास्ट में एंड उसको एक्सपेंसेस पर यूनिट जो भी लाइक ऑफ प्रोडक्शन हो वो चेक करेगा। करेक्ट, एंड वो प्रीवियस ईयर के और इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ उसको फिर कंपेयर भी करेगा, लाइक प्रीवियस ईयर में कितना था और ये जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड में कितना चल रहा है उससे कंपेयर करेगा फिर। करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू द एंटायर ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। नाउ दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप चैट बॉक्स में लाइब्रेरी डालोगे क्या, सो दैट आई गेट टू नो हु ऑल आर इन। सो आई विल आस्क यू वन लाइनर क्वेश्चंस। आई नो आयुषी इज सिटिंग इन लाइब्रेरी राइट नाउ। Sakshi, where are you? At home? Okay, cool. Anurag is in the library. Then नीरज घर पे ही हो ना? योगिता? Harshita is home. Okay, okay. ठीक है. So people who are in the library, I will ask you one liner tricky questions. So it will be harder than the other students, right?
चलो कूल। सो अभी अपने को अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेंस का ऑडिट किया था, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे द एक्सपेंडिचर दे डू इन पेइंग द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इज अ बिग अमाउंट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बिग अमाउंट। सो उस केस में हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? हर्षिता, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। Three types of questions. ओके। First one is how do you understand and evaluate like hiring, appraisal, and retirement process? Second यस। one, how would you verify employee benefit expenses? And the हम्म। last one, how would you disclosure as per Schedule 3, like employee एज पर benefit शेड्यूल थ्री, expenses? How कंपनीज can you एक्ट का disclose? अगर आप ऑडिट कर रहे होगे तो शेड्यूल 3 के हिसाब से कैसे डिस्क्लोजर दे सकते हैं? कैन यू कवर हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द हायर टू रिटायर प्रोसेस? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, Yes, सबसे पहले वो बताओ। there are 4 points, ma'am. ओके, गो हेड। Yes, ma'am. So first one is auditor shall understand the internal controls, like which are designed and implemented by the management, like from hiring till the retirement. करेक्ट। Second one is auditor shall test controls around like employee benefit payment process, like how the controls are common internal controls. Basically, they are like you have to check maintenance of attendance records. Next, यस। employee masters maintenance of employee masters from clients. करेक्ट। Next one is authorization of monthly salaries and यस। payroll processing. Next, authorization of payment disbursement. यस। Next, check the computation of deduction of professional tax, CSI, gratuity, PT, income tax, and etc. And यस। the last one is computation of leave encashment and bonus. So you have Yes. to So check did I not tell you that in you this. can get a separate question just on this point, क्योंकि इसके अंदर में Yes, तीन ma'am. चार पॉइंट्स है। Yes, तो wherever Yes, you ma'am. question in any question you see कि सब पॉइंट्स है, तुरंत अपना कान खड़ा करने का, क्योंकि ऐसे ही वहां पर ही ट्रिक करेगा आपको, बोथ इन एमसीक्यू Yes, ma'am. एंड डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि बच्चे मेन सब हेडिंग्स पढ़ के जाएंगे, अंदर का वो छोड़ेंगे, उसको मालूम है कि हाँ ठीक है। सो नाउ यू बी वेरी अलर्ट, ठीक है? ओके, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? Yes, ma'am. Third step, there might be a lot of employees. So first you have to select one random employee and do some random sampling. That is, check his appointment letter, appraisal letter, attendance report, and related data in employee masters. And the ब्यूटिफुल। last one is perform some analytical procedures as per SA 520. That is, just compare the total expenses with the budget, like and with previous year and industry trend. करेक्ट। Monthly expenses, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली सैलरी एंड वेजेस का जो खर्चा बुक हुआ है salary, वो रीजनेबल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर reasonable एनालिटिकल। दिख रहा है या नहीं, प्रोसीजर यस, लगाना. करेक्ट। इंदर, कैन यू कवर वेरीफाई कैसे करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का असर्शंस, कैसे वेरीफाई करोगे? प्रोसेस आपने अंडरस्टैंड कर लिया, कंट्रोल टेस्टिंग भी हो गया, नाउ आपको असर्शंस वेरीफाई करने हैं, हाउ वुड यू डू दैट? इंदर कल थे क्लास में? अनम्यूट करो। लास्ट वाला पार्ट मिस हुआ था। ओके, कोई नहीं, चलेगा, आज आप कंप्लीट कर लेना। नीरज, यू मैम कमिटेड। अदर एक्सपेंसेस देखा था बट एम्प्लॉय बेनिफिट अभी बचा है कंप्लीट करना। Okay, so who has not answered yet? Will you volunteer? Anyone? Where is Yash? Yash, had you covered any point before? इसके पहले other expenses cover किया था? जी मैम, अदर पावर एंड फ्यूल कवर किया है। Okay, सूरज? यस मैम। हाँ चलो, यूवर कल क्लास अटेंड किया था ना? ओके, कैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का असर्शंस कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके पॉइंट्स कवर करो, ऑल द 5 पॉइंट्स ऑफ इट।
मैम क्या बताना है इसमें 40 को कोई बेनिफिट एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का सेकंड क्वेश्चन। auditor shall be obtained understanding filing appraisal and retirement process. एकदम खराब आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वो, मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसका। साक्षी, हैव यू कवर्ड द लास्ट like yesterday's lecture? मैम मैंने आधा ही कवर किया है। हाँ, आज अभी भी ऐसे कैसे आधा होगा? cover यू किया। विल स्टार्ट टू, यू ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव नॉट completed, अनिकेत का आई नो, he has just enrolled, but those who have not covered the previous day lecture properly, what will happen? You will start to feel the FOMO because rest of the class, this is how exactly things will happen in your life. No, you will compare your preparation with always with someone else. अभी क्लास में अगर 15 लोग बैठे हैं, and if you keep comparing yourself from your class fellow students itself कि यार उसको आ रहा है आंसर करने, मुझे आंसर नहीं करने के लिए आ रहा है, why didn't I start, फिर you will start, वो FOMO के चक्कर में आप एंजाइटी बिल्ड कर रहे हो। See, I'll give equal opportunity for me, all of you are important, आपका रिजल्ट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, सो आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑल द टाइम, सो यू हैव टू रीड, यू हैव लाइक, आप बिना क्लास में बिना पढ़े आ ही नहीं सकते हो, ठीक है? मैम आई विल कवर इट टुडे। यस, एवरीवन, सारे बैकलॉग आज कवर होने चाहिए। नहीं, लेट सूरज कवर, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है? हाँ इंदर बोलो ना। आप ये वाला पॉइंट पूछ रहे हो, हायरिंग और अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस, हाँ क्वेश्चन 2। हाँ, तो इसमें ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें आपने बताया कि एक सेकंड इंदर, लेट सूरज कवर ना, वो उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया था उसके बाद में, ठीक है? ठीक है ठीक है। सूरज, सबसे पहले यू विल ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। मैम पहला वाला क्वेश्चन या दूसरा वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा वाला क्वेश्चन था ना, जहां पर यू विल ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज की, उसमें से न्यू हायर्स कौन से हैं, कितना, हु आर द लीवर्स, हु आर द कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज। हाँ, जिसके 5 पॉइंट थे। हाँ करेक्ट। Auditor shall obtain the list of employees along with the spirit of new their hiring and continue employment. ठीक है। और सेकंड पॉइंट है फिर फॉर न्यू हायरिंग select the samples random basis and obtain appointment letter, verify salary first and subsequent agreed from in appointment. फिर थर्ड पॉइंट है फॉर लीव select for sample random basis full and final सूरज, आई एम settlement. टेलिंग यू, आपको ना आपका हेडफोन चेंज करना पड़ेगा, हेडफोन या वायर्ड हेडफोन्स यूज करो, क्योंकि आपका आवाज ना क्लास को आता नहीं है। आपको लग रहा होगा आप बोल बराबर रहे हो, आपको माइक ना कैप्चर नहीं करता है। ये सेम आपको पहले रेगुलर क्लास में के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है? सो आई नो यू नो द आंसर, बट द थिंग इज हम सुन नहीं पाते हैं, आपका आवाज पूरा कटता है उसमें। सो प्लीज ट्राई कि अगर कुछ कर सकते हो आप उसके लिए। वायर्ड हेडफोन्स वगैरह में नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं, ग्लिच नहीं होता है इसका। सो फर्स्ट पॉइंट यू कवर्ड दैट, सिंपल है। क्लाइंट, अगर आपको ऑडिटर शेल वेरीफाई द असर्शन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कैसे चेक करेंगे? हमको प्रॉपर डिटेल्स टेस्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्लाइंट को बोलो, क्लाइंट प्लीज गिव अस द लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, एंड व्हेन यू गिव अस द लिस्ट, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करो कि कौन सा न्यू हायर्स है, कौन सा लीवर्स है, एंड विच आर द एम्प्लॉयज हु आर कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज, की पिछले साल में भी थे और अभी भी है, ठीक है? और अगर जब सबसे पहले न्यू हायर्स का जो लिस्ट मिलेगा, उस टेक द लिस्ट ऑफ द न्यू हायर्स, सपोज द न्यू हायर्स आर 1000 एम्प्लॉयज, सो यू कांट चेक 1000 एम्प्लॉयज का, डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट द सैंपल ऑन द रैंडम बेसिस एंड न्यू हायर का अपॉइंटमेंट लेटर लो, वेरीफाई करो कि सैलरी जो फर्स्ट मंथ का गया और सब्सिक्वेंट मंथ्स का गया, दैट इज वेदर इट इज एज पर द terms of appointment which is given in the appointment letter itself. Agar suppose there are employees who have left the client during the year, the leavers, uske liye you will select again few samples on the random basis, और उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देखो कि जो भी अमाउंट कंपनी के साथ से, कंपनी के साइड से ड्यू था फॉर दैट एम्प्लॉय, सच एज उसका सैलरी, लास्ट मंथ का सैलरी होगा, वेजेस होगा, उसका ग्रेचुटी हो सकता है, बोनस हो सकता है, लीव एनकैशमेंट हो सकता है, वो सबका पेमेंट हो गया है। देन यू विल ऑल्सो वेरीफाई द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम, वेदर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय छोड़ के गया उससे एक्नॉलेजमेंट मिला है या नहीं मिला है कि उसका FNF सेटलमेंट हो चुका है। एंड देन यू विल परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ
एनालिटिकल प्रोसीजर का अपना खुद का क्वेश्चन आता है। सो आई एम टेलिंग यू, आईसीएआई बहुत स्मार्ट है। आईसीएआई ऐसे 520 का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ 520 पूछेगा। बच्चों को लगेगा कि वो 520 का क्वेश्चन है, वो चैप्टर 5 में पूछेगा कि चैप्टर 5 का ये आइटम में एनालिटिकल प्रोसीजर आप कैसे लगाओगे। और बच्चे लिखते पढ़ते हैं ऐसे 520 के हिसाब से, ये बोला है वो बोला है, नहीं ऐसा हो सकता है। सो याद रखो, व्हेन यू चेक द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगर आपको क्लाइंट प्लेस पे उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ा, तो यू विल फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी रजिस्टर। क्लाइंट को बोलना 12 महीने का मतलब कंप्लीट ईयर का मुझे सैलरी रजिस्टर दे दो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कैलकुलेट एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ, एंड देन यू विल कंपेयर इट विद द अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल लेटर, कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर टू सी क्या उसमें कोई फ्लक्चुएशन है क्या। फ्लक्चुएशन है तो कुछ नहीं, क्लाइंट को पकड़ने का, पूछने का, क्लाइंट इतना ये एम्प्लॉय का सैलरी कितना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ठीक है। देन यू विल सी इन केस ऑफ पीएफ एंड ईएसआईसी वगैरह का पेमेंट किया है, ये तो सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, और स्टैट्यूटरी ड्यूज का फिक्स रेट होता है, इट डजंट चेंज कि 10% 12% ऑफ द बेसिक सैलरी। सो आपके पास सैलरी रजिस्टर है, यू टेक द बेसिक सैलरी एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय 10% एंड सी वॉट एवर द अमाउंट जो आ रहा है, क्या कंपनी ने भी वही बुक्स ऑफ अकाउंट में हर मंथ वो पीएफ ईएसआईसी का अमाउंट कैलकुलेट किया है? अगर नहीं, so that means there is some fluctuation, and you will ask the client what are the reason for fluctuations. Then you will परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन द टोटल एक्सपेंस। टोटल सैलरी का कॉस्ट कितना है साल भर का, वो देखो, कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री, सेम सेम सिमिलर कंपनी, आपके क्लाइंट के जैसा सिमिलर कंपनी अगर उस इंडस्ट्री में है और उसका डेटा अवेलेबल है, तो देखो कि उनका टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना आता है वर्सेस आपके क्लाइंट का कितना है। अगर उसमें ह्यूज फ्लक्चुएशन है तो देखो क्या कंपनी का कैपेसिटी अलग अलग हो, बहुत सारे वैलिड रीजन हो सकते हैं ना, वर्सेस बजट भी कंपेयर करके देख लेना। एंड लास्ट इज वेरीफाई करो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी स्पेशली मार्च एंड में जितने भी प्रोविजंस लिए हैं एंटिटी ने, वेदर दोस प्रोविजंस आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो करेक्ट प्रोविजंस किए हैं या नहीं किए। यस, एवरी डे फर्स्ट हाफ एन आवर विल ट्राई टू रिवाइज कि लास्ट डे क्या पढ़ा है, ठीक है। तभी मल्टीपल टाइम व्हेन यू रिकॉल थिंग्स, और आप खुद बोलोगे ना, आपको याद होंगी चीजें, क्योंकि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई से, मुझे तो याद ही हो जाएगा ना, बट व्हाट अबाउट यू, इट इज यू हु हैव टू प्रोड्यूस इन द एग्जाम, राइट? ठीक है। सो दोज हु हैड नॉट कवर्ड दिस टॉपिक बिफोर, आप इसके बेसिस पर कवर कर लेना, ठीक है। लास्ट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें कि यार शेड्यूल 3 के हिसाब से हाउ डू यू डू द डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो कुछ नहीं है, वो सिंपल है, सैलरी वेजेस और पीएफ वगैरह का जो पेमेंट रहता है वो सेपरेटली सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। यस एवरीवन, सैलरी वेजेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ फंड्स, अदर फंड्स, एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये 4 कैटेगरी में आप एग्जाम में शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट दिखाओगे फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चलो इसी बात पे शेल वी स्टार्ट द डेप्रिसिएशन। इंदर, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दो मेथड्स होते हैं मैम। हाँ बोलो ना, दोनों मेथड्स कैसे लगाते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक डब्ल्यूडीवी मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए आपको क्या, किस चीज का जरूरत पड़ता है? अ, जो एसेट का परचेज प्राइस है वो, करेक्ट। और जो भी खर्चे होते हैं उसको मतलब रेडी टू यूज करने के लिए। सपोज टोटल कॉस्ट आपको पता चल गया, जितने में आपने मशीन खरीदा है उसका कॉस्ट पता चल गया, अभी टोटल कॉस्ट के मंथली डेप्रिसिएशन में कैसे या ईयरली डेप्रिसिएशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसको? फिर एक रेट चाहिए होता है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। एसएलएम मेथड में व्हाट डू, यू डिवाइडेड विथ नंबर ऑफ इयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, बराबर, सिंपल है, वैसा ही है। डब्ल्यूडीवी में यू टेक द कॉस्ट ऑफ असेट एंड यू मल्टीप्लाई विद सर्टेन रेट, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, फिर जो डब्ल्यूडीवी बचता है उसके ऊपर वापस वही रेट लगाते हैं अगले साल, ऐसे कर करके आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हो। ये बेसिक फंडामेंटल है। क्लाइंट ने भी इसमें से ही कुछ तो किया होगा, वेटेड एवरेज मेथड लगाया होगा, एसएलएम डब्ल्यूडीवी कुछ तो लगाया होगा उसने, राइट? सुर भी क्लास में होना है।
हाँ, ठीक है। सो ऑडिट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप कैसे करोगे? देखो, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक तो पहले वो आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वेरीफाई करने का जनरल एट्रीब्यूट्स पूछेगा, ठीक है। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन डेप्रिसिएशन, एवरीवन प्लीज गिव द हेडिंग इन योर नोट्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में टू टाइप का क्वेश्चंस आएगा, राइट। टाइप वन, फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पूछेगा जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ verifying depreciation and amortization, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन वुड बी ऑडिट प्रोसीजर्स ठीक है। व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई द टू अप्लाई ऑन द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो जनरल एट्रीब्यूट्स कि आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड कोई भी क्लाइंट पे जाए, मतलब ऑल ऑफ यू दैट 15-16 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर आप अपने रिस्पेक्टिव सीए फर्म्स के क्लाइंट के पास में जाओगे और उनके बुक्स में आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखना है, करना चेक करना है, सो ये 8 एट्रीब्यूट्स तो आप सबको करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आप कौन से सिटी में हो, कौन सा क्लाइंट है, कुछ ले। अगर बुक्स में डेप्रिसिएशन है तो these 8 attributes you have to verify, ठीक है। सबसे पहला, what is the accounting policy? What is the policy of the company for applying the depreciation? हर कंपनी का अपना तरीका होता है, आप समझ लो। अगर सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन एक अलग वे में करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग वे में डिप्रिशिएट करते हैं एसेट को। लाइक यूज, जिस तरह से यूजेस का पैटर्न होता है, आप समझ रहे हो। लाइक मैंने अगर मशीन बाय किया, इफ आई हैव बॉट द मशीन, मेरा मशीन को यूटिलाइज करने का पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट होगा, और उस मशीन को यूज करके जो मैं प्रोडक्शन करने वाली हूँ वो पैटर्न कैन बी वेरी डिफरेंट। वही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाले जो कंपनीज रहते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनके पास जो उनकी असेट्स को यूटिलाइज करने का पैटर्न होता है वो अलग होता है। So every company can have a different policy for depreciation. सबसे पहले obtain the understanding of the depreciation policy of your particular client, ठीक है। So first question, answer. First point, obtain understanding of depreciation and amortization policy of the entity. हम सबसे पहले क्लाइंट का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का पॉलिसी चेक करेंगे, राइट। एंड देन यू विल ऑल्सो हाईलाइट एट द सेम टाइम, उसको बॉक्स में करके जो कीवर्ड्स होते हैं उसको सिर्फ अंडरलाइन नहीं करो, प्रॉपर बॉक्स में कर दो। दैट मेक्स विजिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाता है उसका, ठीक है। सिर्फ उसको बॉक्स में करके डाल दो। सेकेंड, मैं मेरे मन से कोई भी पॉलिसी बनाऊं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में मैच नहीं करे, आपको चलेगा क्या? आई वॉन्ट टू यूज वॉट एवर पॉलिसी आई वॉन्ट टू मेक। आप ऑडिटर है, ऐसा होगा क्या? विल यू अलाउ मी टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम योर क्लाइंट, यू आर द ऑडिटर, विल यू अलाउ मी टू पुट एनी पॉलिसी? नहीं। वॉट यू विल चेक, मेरा डेप्रिसिएशन का पॉलिसी किससे मैच होना चाहिए? एटलीस्ट AFRF, Financial Reporting Framework. It can be Ind AS, it can be Schedule 3, in case it can be accounting standard, it can be, अगर मैं foreign entity है IFRS हो सकता है, US based company है US GAAP हो सकता है। So all these accounting standards are collectively called AFRF, Applicable Financial Reporting Framework. कंपनी के ऊपर जो भी FRF लगता है उसके हिसाब से ये पॉलिसी मैच होना चाहिए, ठीक है। Verify whether entities policy to charge depreciation and amortization is as per AFRF Schedule 2 of the Companies Act, Schedule 2 लगता है डेप्रिसिएशन के लिए, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS जो भी है उसके हिसाब से, ठीक है। सो सबसे पहले पॉलिसी अंडरस्टैंड करने का और फिर देखने का पॉलिसी जो है वो एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए,
ठीक है। अब लास्ट ईयर जब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया मशीनरी का, तो आई हैव अप्लाइड 12% डेप्रिसिएशन रेट। दिस ईयर आई एम चेंजिंग द रेट टू 15%। अगले साल मैं 18% करूंगी। चलेगा क्या आपको? विल यू बी हैप्पी आफ्टर लुकिंग इनटू माय अकाउंट डेप्रिसिएशन का? नो। व्हाई? बिकॉज क्या नहीं है यहां पर? फाइंड द कीवर्ड। व्हाट इज व्हाट मेरे अकाउंटिंग में क्या मिसिंग दिख रहा है आपको? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसा जब मर्जी किया तब आप ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। इट्स लाइक यू आर मिसलीडिंग द शेयर होल्डर्स बाय शोइंग अननेसेसरी फ्लक्चुएशन इन योर प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट बिजनेस से नहीं आ रहा है, वो प्रॉफिट इस बात से आ रहा है क्योंकि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही हूं। तो आप समझ रहे हो ना कि किसी पर्टिकुलर ईयर इफ आई एम नॉट मीटिंग माई टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, ठीक है, बट मुझे शेयर होल्डर्स को नाराज नहीं करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेंज माई इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पॉलिसी, आई कैन चेंज माई डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ताकि मैं प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन दिखा पाऊं। उनको क्या पता चलेगा? उनको तो एंड में प्रॉफिट दिख रहा है यार, नेट प्रॉफिट अच्छा, तो उनको तो लगेगा कि हाँ हाँ चलो कंपनी मेरा बराबर पैसा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज कंपनी हैज अचीव दिस प्रॉफिट। दैट इज हाउ यू मिसलीड योर। ठीक है, मेक सेंस ना? सो वेरीफाई whether policy is consistently applied on year basis। ठीक है। और सिर्फ अगर सपोज बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर यू हैड कम टू माय ऑफिस एंड चेक्ड कि मधु ने अपना जो ऑफिस ये क्लास का जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक सर्टेन रेट से लगाया, ठीक है। एंड लास्ट ईयर व्हेन यू लास्ट ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर में यू केम एंड यू आर लाइक नहीं नहीं मधु, टिल लास्ट ईयर वॉट एवर रेट यू हैव अप्लाइड इट इज नॉट राइट, यू डिड नॉट फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली, तो दिस ईयर यू विल हैव टू चेंज। मैंने अग्री कर लिया कि ओके ऑडिटर, आई विल चेंज। नाउ वेन एवर आई एम चेंजिंग माई पॉलिसी, डोंट यू थिंक कि मुझे अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा ये चीज कि आई एम चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है, बट इफ देर इज अ वैलिड रीजन कि मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, आई नीड टू डिस्क्लोज, राइट? सो एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज। सी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो डिस्क्लोज करके नोट्स टू अकाउंट में बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू सिंस योर 11th स्टैंडर्ड। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। वेरीफाई डेप्रिसिएशन is calculated after making adjustment of residual value. Put adjustment and residual value under box. Change in accounting policy adequately disclosed under box and policy is consistently applied under box. ठीक है। Policy is as per entities policy is as per AFRF under box. ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर डन? दीज आर 4 पॉइंट्स। देयर आर 4 मोर पॉइंट्स इनटू दिस बिकॉज जनरल एट्रीब्यूट्स थोड़ा बड़ा होता है, डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा झोल कर सकती है कंपनी। सो यू हैव टू सी वेदर ऑल दीज पॉइंट्स आर कंपनीज अप्लाइंग प्रॉपरली और नॉट। देन यू हैव टू वेरीफाई डेप्रिसिएशन and amortization is charged appropriately in P&L account। ठीक है। जानबूझ के कंपनी ने मैन्युपुलेट नहीं किया है, 10% की जगह 12% का रेट लगा करके दे हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड चार्ज इनटू P&L। प्रॉफिटेबिलिटी कम करने के लिए मैं तो डेप्रिसिएशन बढ़ा के दिखा ही सकती हूँ ना, या प्रॉफिटेबिलिटी मुझे ज्यादा दिखाना है, सो आई कैन चार्ज लोअर डेप्रिसिएशन। सो प्लीज चेक कर लेना, वॉट एवर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज चार्ज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज चार्ज, इट नीड्स टू बी चार्ज अप्रोप्रिएटली इनटू द P&L अकाउंट और वैलिड अमाउंट होना चाहिए, इन वैलिड अमाउंट। ठीक है। देन
लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मैं करंट ईयर में चार्ज करूं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मैं नेक्स्ट ईयर में चार्ज करूं, चलेगा क्या आपको? नहीं? ओके। ऑल डेप्रिसिएशन एंड amortization recorded in appropriate period. ठीक है, पुट रिकॉर्डेड एंड अप्रोप्रिएट पीरियड इन बॉक्स 7। आपको AS10 यू हैव स्टडीड ना, अभी AS10 यू हैव इन द सिलेबस राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ना देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स। डू यू हैव दैट कंसेप्ट AS10 पे? व्हाट डज इट से? लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ह्यूज मशीनरी, मशीनरी का कॉस्ट इज 60 लाख, ठीक है, इट्स अ ह्यूज मशीनरी। अभी मशीनरी एक सिंगल बॉक्स तो नहीं होता है, मशीनरी के अंदर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स एंड एवरी पार्ट कैन हैव अ डिफरेंट यूजफुल लाइफ। अमन, अमन बी ऑन म्यूट, अमन बी ऑन म्यूट। Every machinery part may have a different useful life. So AFRF क्या बोलता है कि अगर आपके मशीन के अलग अलग कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स का डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग अलग तरीके से होना चाहिए। अगर लाइक ओवरऑल मशीनरी विल गो फॉर 10 years बट कोई कंपोनेंट है जो 3 साल में ही खराब हो जाएगा और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 3 साल में उस कंपोनेंट को डेप्रिशिएट करके जीरो करो ना, उसको क्यों 10 साल तक लेके जाना है? यस और नो? डज इट लॉजिकली मेक सेंस? आयुषी, कविता? यस, ठीक है। राइट डाउन, वेरीफाई वेदर कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई, कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई अरे आर depreciated appropriately. Aman, have you joined late? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट नाउ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देर इज जस्ट वन क्वेश्चन, इसके पहले हमने हाफ एन आवर जो कल पढ़ा था वो रिवाइज किया था एंड दोज हुएवर जॉइंट लेट लास्ट फर्स्ट 24 मिनट्स वी हैड जस्ट डिस्कस व्हाट यू हैव स्टडीड यस्टरडे, उसको रिकॉल किया एंड देन आई हैव स्टार्टेड विद द डेप्रिसिएशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाद में कंप्लीट करना, इतना अपना जगह छोड़ दो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। देर वर टोटल 8 एट्रीब्यूट्स थे, मैंने उसको 7 में कन्वर्ट किया है। कैसे? ये जो वैलिड वाला पॉइंट है ना, इसके में आईसीआई ने पता नहीं 2 पॉइंट्स क्यों बना के रखे थे डिफरेंटली, उसको मैंने एक साथ में ही कंबाइन किया कि वो पीएनएल में चार्ज किया अप्रोप्रिएटली एंड कहाँ गया यार वैलिड अमाउंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0.5 को मैंने कंबाइन किया, तो सो टोटल 7 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कैन वी डू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? देखो, सुनो मेरी बात, 7 एट्रीब्यूट्स में ये चीजें आपको चेक करनी है, बट चेक करने का एक तरीका होता है। जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते हो ना, तो ऑडिट प्रोसीजर्स कंटेन्स द वे यू वुड टॉक टू द क्लाइंट, व्हाट डेटा यू विल टेक। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि चेक करो, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए, दिस होना चाहिए, बट करना कैसे है वो कौन बताएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके लाइफ में एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको पहले वो कंसेप्ट समझाती हूँ। अच्छा हाँ, आई हैड टू टेल यू दिस ना, मैंने आपको कल बताया था, यू हैव टू लर्न अ इक्वेशन, राइट? व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू लर्न दैट इन ऑडिट आप नॉर्मली आपके लाइफ में का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन ऑडिट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दिस इज यू राइट समवेयर एल्स, ये इसके डेप्रिसिएशन के उधर मत लिखो, कहीं पर और लिखना है पहले, लेकिन समझो मैं क्या बोल रही हूँ। ऑडिट में व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? No one writes anything, huh? I'll give you time to write it. What is your objective? To obtain reasonable assurance. To obtain reasonable assurance. किस चीज का reasonable assurance? That financial statements Financial statements are free as from a whole financial statements. are free from material misstatement. कौन से material misstatement? Whether Due to error or fraud. error or fraud. यस, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों कर रहे हैं ये सारा, इतना बैठ करके 100 नंबर का पेपर का तैयारी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, राइट?
रीजनेबल assurance is a high level of assurance that financial statement पूरी तरीके से पूर्णतः whole as a whole are free from material misstatement. Material misstatement whether caused by error or fraud. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजनेबल अश्योरेंस आप देना चाहते हो कि भाई कोई एरर या फ्रॉड नहीं है, तो ये ज्ञान लिख देने से तो आपका काम नहीं होगा. हाउ विल यू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? कैसे ये ऑब्जेक्टिव ये करोगे अचीव? By applying the audit procedures. ब्यूटिफुल. बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. वेयर पूरे बुक्स में आपको कहां पर दिया है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए? वेयर वेयर इट इज रिटन यू हैव टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर, दिस ऑडिट प्रोसीजर, दैट ऑडिट प्रोसीजर? ऐसे 315, And ऐसे 330. 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. ये 315 330 क्यों बना है? 315 बोलता है कि एंटिटी को समझो, उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क कि भाई पूरे फाइनेंशियल में कहां कहां पर मिस स्टेटमेंट हो सकता है. यस, इसके लिए ही आप रिस्क ये कर रहे हो. एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट कि भाई हाँ एक्चुअली में यहाँ पर रिस्क है. चलो अभी रिस्क है तो क्या करें? तुरंत जाके दौड़ के आप ओपिनियन तो नहीं बना सकते ना. आप समझ रहे हो ना? रिस्क मिलने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क मिल गया कि ओ माय गॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन गलत हो सकता है, तुरंत जाके ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाना है. आपको वेरीफाई करना है कि सच में डेप्रिसिएशन ऐसा हुआ है नहीं हुआ है. इसके लिए आप ऐसे 330 में जाते हो. ऐसे 330 आपको बोलता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए. व्हाट डू यू मीन कि आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है? यू हैव टू अप्लाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर. व्हाट डू यू मीन सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर? सब्सटेंस कैसे चेक करेंगे? बाय डूइंग द टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर. ठीक है, अभी ये तो ज्ञान हो गया कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, रिस्क असेसमेंट. बताएगा कौन कैसे करना है? किसी किसी आपको मैं ऐसे बोल करके भेज दूं और अगले दिन क्लाइंट प्लेस पे भेज दूं, कैसा लगेगा आपको? व्हाट विल यू डू ओवर देयर? क्या मांगोगे वहां पर जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से? हैव यू थॉट कि अगर आपको ये चीज पता भी चल गई ऐसे 330 में तो करना क्या है वो कौन बताएगा क्लाइंट प्लेस पे? ऐसे जाके बैठेंगे कि नहीं आई हैव कम हियर टू डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो बोल देगा क्लाइंट करो, फिर क्या दिक्कत है? किसी को अपॉइंटमेंट बताना लेटर तो जो मिलेगा पड़ेगा. ऑडिटर में. हाँ, that is why you have a beautiful chapter called chapter 5, जिसमें ईच एंड एवरी आइटम में आपको सिखाया जाता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करना है. प्लस चैप्टर 4 विच टेल्स यू कि स्पेसिफिक केसेस में जैसे इन्वेंट्री हो गया, लिटिगेशन एंड क्लेम हो गया, सेगमेंट इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब मांगोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर जब लगाओगे तो कैसे लगाना है, ओपनिंग बैलेंस जब ऑडिट करोगे 510 में तो कैसे करना है, जब इंटरनल ऑडिटर व्हेन यू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर तो किस तरह से उसका काम, कब उसका काम यूज कर सकते हैं. ऑल दीज स्टैंडर्ड्स जो आपको चैप्टर 4 में है. प्लस चैप्टर 7 कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न कैसे चेक करना है, एंटिटी का सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे चेक करना है. अगर मिस स्टेटमेंट मिल गया तो ऐसे 450 में कि भाई अगर गलती मिल गई आपको, वाकई में आपको प्रूफ सबूत है आपके पास में कि एंटिटी ने गलत किया है, तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे कि भाई ये बड़ी गलती है या छोटी गलती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है. आप समझ रहे हो ना कि आपका सिलेबस कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है. पहले वो आपको सब थियोरी समझाते हैं टिल ऐसे 330 और एवरीथिंग इज थियोरी. उसके बाद धड़ धड़ करके चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स वो आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं कैसे करने का. एंड दैट्स वेयर बच्चे आस्क मी कि चैप्टर 4 में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, छोड़ दे क्या? वाट नहीं लग जाएगी एग्जाम में? आईसीआई आपका थियोरी का क्या करेगा अनलेस एंड अनटिल यू कैन एक्सप्लेन कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑडिट करना आता है. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो आपके चैप्टर आपके लाइफ में बने हैं, आप जाकर के अपना ओपिनियन लिखो ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब ऐसे 700 सीरीज में. उसके पहले एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप्लाई कैसे करोगे ऑडिट प्रोसीजर्स? दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस इज द इक्वेशन यू मस्ट नो कि वो थ्योरी पढ़ के उसको अप्लाई कैसे करना है. एंड दैट ये वाले पोर्शन से कितना कितना सॉलिड आपका मार्क्स आता है. चैप्टर 5, 4, 7, चैप्टर 8. इमेजिन, डू यू हैव एनी आइडिया कितने मार्क्स का पोर्शन है आपके सिलेबस में? 20 to 25. कुछ भी.
चैप्टर मैम 5 ही 20 सारे नंबर 15-20 नंबर का पूछ लेगा इन टोटल मैम ये सारे इन टोटल। चैप्टर्स चैप्टर 4, 5, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। में अराउंड 50 मार्क्स 60 मार्क्स। 50-60 मार्क्स में। मिनिमम आप मान करके चलो 45 to 50 marks will get covered by this chapters itself. So whatever you gain in the audit of bank, different entity, chapter 1, chapter 2, अगर ये कर लिया ना तो 45 to 50 marks का कवरेज यहां पर ही आपका हो जाता है और सॉलिड होता है बोथ इन एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। सो ये कभी नहीं छोड़ने का, ठीक है। हालांकि आई मेक श्योर कि मैं आपको इनफ प्रैक्टिस करा दूं इसका, बट डू यू वांट टू राइट दिस एटलीस्ट, ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, यू राइट समवेयर, ठीक है। वो सब ज्ञान क्यों दिया था मैंने आपको? बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द डेप्रिसिएशन दैट यू हैव लर्न इज, यू नो कि व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ डू यू डू इट, हाउ का आंसर कहां मिलेगा, हाउ का आंसर विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज योर ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई depreciation and amortization. yes, सबसे पहला क्लाइंट से अंडरस्टैंड कर लेने का, ऑफ क्लाइंट के साथ पे प्रॉपर मीटिंग सेटअप करो, obtain the understanding of entities process of charging depreciation and amortization. फिर client will explain you into that meeting कि what is the policy they followed, this and that is. फिर client को बोलने का कि बाबा मुझे अपना फिक्स्ड असेट रजिस्टर दे दो। दिस इज अ लेजिट, एक रजिस्टर होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ऑनलाइन एक्सेल में बनता है, एक्सेल होता है या सिस्टम जनरेटेड होता है, बेसिकली एंटिटी का ईआरपी सिस्टम होगा उस पर जनरेटेड होता है, उसको बोलते हैं FAR, फिक्स्ड असेट रजिस्टर। सो ऑब्टेन करना है बिकॉज उस रजिस्टर में ना जब से वो एंटिटी चालू हुआ होगा ना तब से लेकर अभी तक जितने भी असेट्स खरीदे हैं, वॉट एवर द असेट दे हैव बॉट सोल्ड दिस एंड दैट, लाइक यू नो डिस्कार्ड कर दिए, एवरी सिंगल आइटम विल बी देयर इन दैट FAR। और वो हर लाइक एक सिंगल भी, लाइक ऑन 31st of October दे हैव बॉट अ मशीनरी, उसका एंट्री होगा, अगले दिन दे हैव बॉट सम यू नो सम फर्नीचर, उसका भी एंट्री होगा। सो एक सिंगल सिंगल असेट्स का लाइक यू नो जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका फिक्स्ड असेट रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑडिटर शेल obtain FAR maintained by the entity and check nature of assets and physically verify the assets, especially of material value। जो भी हाई वैल्यू आइटम्स होंगे ना उस फिक्स्ड असेट रजिस्टर में, आप जाकर के ना क्लाइंट को बोलना कैन यू शो इट टू मी, वेयर इज इट फिजिकली लोकेटेड, पूरे प्रेमाइसेस में कहीं तो होगा ना वो मशीनरी। ऑब्टेन द रजिस्टर एंड गो एंड पहले तो चेक कर लो कि उसमें कौन कौन से टाइप का असेट्स है, लाइक यू नो व्हाट आर द इंटेंजिबल असेट्स, व्हाट आर द टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स में कितना उसका, लाइक यू नो हाउ मेनी कार्स आर देयर, हाउ मेनी लाइक मोटर व्हीकल्स आर देयर बेसिकली, देन हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर, हाउ मेनी फोर्कलिफ्ट्स आर देयर, हाउ मेनी अदर मशीनरीज आर देयर, देन बिल्डिंग कितना है, लाइक यू नो what land they have mentioned, every nature of assets पहले पहचानने का। देन उसके बाद में जो भी मटेरियल हाई वैल्यू आइटम्स होंगे उसको फिजिकली वेरीफाई करने का, पूरा प्रीमाइसेस में कहीं तो दिखना चाहिए ना, ठीक है। देन थर्ड, select sample of assets and verify its rate of depreciation and depreciation calculation, ठीक है। रेट भी चेक करना है आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेशन भी चेक करो वो प्रॉपर है या नहीं है, वो हमने जनरल एट्रीब्यूट्स में भी कवर किया था, यहां पर भी कवर किया। ओके, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आयुषी,
From what date you should be charging depreciation to an asset? कौन से डेट से असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना चालू करते हैं? From the date when it is ready to use or from the date when it is put to use? When it is ready to use. हाँ, When it's ready to use. अब आयुषी को पूछा था हर्षिता मैडम, ठीक है? So when it is ready to use, so like for example, if I have bought this phone today but I have started using it next year, I can't postpone the depreciation to next year, right? Even though I'm not using it, when the moment it is ready to use, वहां से ही depreciation charge करना चालू करना पड़ेगा. So verify that depreciation is charged from the date when asset is ready to use and not put to use. Okay. In the accounting standard 10, have you studied the concept of revaluation of asset? Can your client do the revaluation, Kavita? As per AS 10, revalue कर सकती हूँ मैं, आप मेरे assets को, machinery को मुझे revalue करना है. Can I do that? Yes. So अगर revaluation हुआ है, so most of the time revaluation करने के टाइम पे suppose मैंने revaluation करके value increase कर दी है, ठीक है, asset की, तो there will be a proper रिवैल्यूएशन रिजर्व दैट विल गेट क्रिएटेड, और बाद में फिर बहुत सारी चीजों के लिए हम वो रिवैल्यूएशन रिजर्व ही यूज कर लेते हैं, ठीक है? सो वेरीफाई करना आपको, वेरीफाई व्हेन असेट्स आर रीवैल्यूड डेप्रिसिएशन आर कैलकुलेटेड ऑन, कौन से ओरिजिनल वैल्यू पे जो डब्ल्यूडीपी है उस पे करेंगे कि रिवैल्यूड अमाउंट पे करेंगे? हाउ डू आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन गाइस? हर्षिता, किसकी कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करूं मैं? इफ द असेट इज रिवैल्यूड, ओरिजिनल डब्ल्यूडीपी और रिवैल्यूड अमाउंट? Revalued amount, ma'am. रिवैल्यूड अमाउंट. एंड इज प्रॉपरली, सो सपोज रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया था, तो जो डिप्रिसिएशन में चार्ज करूंगी आई कैन प्रॉपरली उसको अकाउंट फॉर कर सकती हूं मैं फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व. सो द प्रॉपरली अकाउंटेड फ्रॉम revaluation reserve. How many points are there? 5 is done now. Chalo, you write the sixth point, and I think that is enough for you. Ensure depreciation and amortization is charged as per useful life of asset. Now, I have missed a very important and easy point. I have told you like there is one easy point जो आप कहीं पर भी चिपका सकते हो. What is that? In any items of audit of items of financial statement? Ma'am, it belongs to the entity. अरे कुछ भी नहीं नहीं, एक कॉमन पॉइंट है ना जो मैंने आपको कल बताया था इन टर्म्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाला, दैट यू कैन अप्लाई इन ऑल द आइटम्स. एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली. यस, ट्रेंड कंपैरिजन, एनालिटिकल प्रोसीजर. सो जस्ट वो तो पॉइंट कुछ याद नहीं आया ना, तो वो तो आएगा ही आएगा, राइट? सो अप्लाई analytical procedures to verify the what should I write in the box? Reasonableness.
ब्यूटीफुल। रीजनेबल होगी। मैम वो शो नहीं हो रहा है, लास्ट लाइन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यू कैंट सी दैट ऑन द स्क्रीन क्या? हम लास्ट लाइन छुप जा रहा है। नाउ मैम 7 पॉइंट एक बार बताइए ना, कल नहीं। हाँ, सो दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको, एनी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है ना, देर इज अ स्टैंडर्ड इन योर सिलेबस कॉल्ड एट एस ए 520, राइट? सो लाइक देर वॉज ऑल्सो एक टाइम था, लाइक बाबा आदम के जमाने का, when na started accountants didn't used to apply their brain a lot. So what they will do it, they will check each and every transaction and like they will do the control testing in terms of क्या करते थे, कागज लेते थे, whatever bills and vouchers and ये this and that is there, and उसके फैक्ट चेक करते रहते थे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है? फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसे इवॉल्व हुआ कि यार why are you not using your brain? How do you use your brain? By doing the analysis of something. So every time you go to a client place and you have an item, like for example sales का ऑडिट करना है, कोई नहीं, बेस्ट है सेल्स का पूरा डंप लेने का 12 months का, ठीक है? टेक द डंप एंटिटी के सिस्टम में 12 महीने में जितने ट्रांजेक्शन, सपोज यू आर द ऑडिटर ऑफ Amazon, Amazon का भर भर के दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होते होंगे यार, उसके मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो, टेक पूरा डंप एंड देन अप्लाई एनालिसिस ऑन दैट। कैसे एनालिसिस लगाओगे? रिमेंबर द क्रिकेट का एनालिसिस देखा है, ऑल द पाई चार्ट, ऑल द ट्रेंड ग्राफ, दिस एंड दैट, कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, कंपेयर इट विद बजट, कंपेयर इट विद द अदर प्लेयर इन द सेम फील्ड जो भी है, लाइक द टॉप 5 बैट्समैन। सो फॉर एग्जाम्पल कंपेयर इट विद द सेम लाइक सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज, उनका सेल्स का ग्रोथ कैसा है, मार्केट ग्रोथ कितना किया है वर्सेस आपका एंटिटी कितना ग्रो किया है, वेदर वो एक दूसरे के साथ में ट्यून अप कर रहा है क्या। सेम हमने खर्चों पे भी किया था कल, ये कि सपोज ट्रैवल एक्सपेंस है, अभी ट्रैवल एक्सपेंस मेनली किसका जाता है? सेल्स के एम्प्लॉइज का जाता है, राइट? सो अगर सपोज ट्रैवल एक्सपेंस का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल इन यस्टरडेज क्लास कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ट्रैवल का खर्चा एकदम से शूट अप हो गया। सो व्हेन यू वेंट टू क्लाइंट, की क्लाइंट ऐसा कैसा तुम्हारा ट्रेंड इतना बढ़ के दिख रहा है इन दिस मंथ? सो क्लाइंट बोला अरे बाबा दिस इज अ फेस्टिवल सीजन, हमारा सेल्स भी ज्यादा बढ़ता है इस टाइम पे। सो देन यू विल सी ओ या एक्चुअली द सेल्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। सो ये सब पॉसिबल होता है, इनवॉइस देखने से नहीं पता चलता ये सब कभी। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल व्हेन यू यूज योर ब्रेन एंड अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर। यूज एक्सेल फाइल में ये सारे टूल्स होते हैं, ट्रेंड ग्राफ बनाने के, बार ग्राफ बनाने के, पाई चार्ट्स बनाने के, अप्लाई ऑल ऑफ दैट इन अ डेटा एंड देन उसके ऊपर फिर आप देखो कि आप क्या एनालिसिस ला सकते हो। जो चीज कागजों को देख के पता नहीं चलती है ना, वो एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको पता चलता है कि यार दिस इज नॉट लुकिंग राइट, दिस इज लुकिंग अनरीजनेबल, यहां तो फ्लक्चुएशन आ रहा है। यस, एंड दिस पॉइंट यू कैन अप्लाई इन एवरी आइटम। लास्ट में लिख देने का एस पर 5 यस। चलो, सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज डन। एक बार क्विकली ऊपर से नीचे तक देखो, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि टुमारो इन द क्लास आई आस्क। डन ऑन डेप्रिसिएशन, राइट? विल यू बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन इन द एग्जाम? डेप से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो चलो, ब्यूटीफुल। नाउ वी डू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है? सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको चैप्टर 5 का वो टेस्ट एंड फ्लेवर मालूम होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए आई हैव टेकन द सम इजी एग्जाम्पल, लाइक एक्सपेंसेस साइड मैंने मेनली कवर किया था, ठीक है? अभी भी एक्सपेंसेस या कंपनी का कॉस्ट ही कवर करेंगे, बट दिस इज द मेन कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज, उसका ऑडिट करने के लिए, ठीक है? अभी सुनो, जब आप कॉस्ट ऑफ परचेज ऑडिट करोगे, इसका मतलब है आपको एक कंपनी का प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ठीक है? सो आई विल टेक योर नेक्स्ट 10 minutes फर्स्ट टू पुट समथिंग इन योर ब्रेन। अदरवाइज क्या होगा ना कि suddenly you will know, okay, you have to check the purchase order, you have to check the GRN, you have to check the invoice, you have to check the payment advices, this and that. So these are only words in your ears, जिसका कोई relevance आपको समझ में नहीं आएगा कि when PO is generated, when GRN is generated. So let me first understand कि एक organization पे general purchase process क्या होता है, और standard one ऐसा नहीं है कि सेम सबको एप्लीकेबल होगा, उसका ट्विस्ट करके हर ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है प्रोसेस, ठीक है? यू फोकस ऑन द स्क्रीन, मैं आपको क्या बोल रही हूं। When your client buys the raw material,
when your client buys the raw material, how many different entities are involved? When you buy something from Amazon, how many different entities are involved? Ma'am, vendor, delivery channels. Vendor, आपके लिए डिलीवरी वाले पर्सन का कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज वो वेंडर का ही आदमी है. सो वेंडर एंड यू, परचेजर एंड सेलर, ये दो एंटिटी इन्वॉल्व होंगे. सो जब आप अपने क्लाइंट के कॉस्ट ऑफ परचेज को ऑडिट कर रहे होगे, सो यू नीड टू नो कि आपके क्लाइंट के सप्लायर्स कौन है, राइट? सो देयर आर टू एंटिटी, वन सप्लायर एंड वन योर क्लाइंट. नाउ योर क्लाइंट के प्रेमाइसेस पे बहुत बड़ा एक प्रोसेस सेटअप होगा. ठीक है, क्या प्रोसेस सेटअप होगा? देयर वुड बी अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. आपके क्लाइंट का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्शन करता है, रियल वर्क कर रहा है. दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स. ठीक है, जब वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उनको आइटम का नीड जनरेट होगा कि बॉस आइटम ए नहीं है हमारे पास, वी हैव टू बाय इट. कैन प्रोडक्शन गाय गो एंड बाय द मटेरियल देमसेल्व्स? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग खुद गुड्स बाय कर सकते हैं क्या? No, ma'am. So the production guy will be depending on purchase department. आपके क्लाइंट के ऑफिस में एक परचेज का डिपार्टमेंट होगा. Production department will tell the purchase department, I need item A. What is the need right now? I need item A 50 quantity. They will tell it to the purchase department. Purchase department will call the shop floor and see warehouse पे ये item A है क्या? Warehouse वाला person बोलेगा कि नहीं, there is no item A करके, you have to buy it only, right? So definitely there is another department, warehouse department, where all the material is stored. वेयरहाउस या फिर स्टोर्स बोलते हैं उसको. ठीक है, दिस पर्सन हैज कॉल्ड दिस एंड पता चला कि आपको ये करना है. ठीक है, ओके, ग्रेट. सो फार अभी वी नीड अ गेट फॉर दिस प्रेमाइसेस. ठीक है, गेट होगा और यहां पर गेट का सिक्योरिटी बैठता होगा. इसी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स टीम. यस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक एरिया होगा जहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे लोग बैठते होंगे जो बिलिंग का काम देखते होंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा होगा, राइट? देन देयर आर ऑल्सो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ये सारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइजेशन पे. लाइक बेसिकली एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस, राइट? सो मैंने सिर्फ वो फंक्शंस प्लॉट कर दिए हैं ताकि मुझे वो आपको स्टोरी समझाने के लिए हेल्प हो. और सप्लायर के ऑफिस में आपको लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर का सिंपल सा काम है कि वो एक बार आपके क्लाइंट से उसको ऑर्डर प्लेस हुआ, सप्लायर माल भेजने वाला है. ठीक है, सो फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब अपना मटेरियल का नीड बताएगा परचेज डिपार्टमेंट को, तो ऐसे डायरेक्टली फोन करके बोल देगा क्या भाई तू आइटम ए मंगा रहा है क्या 50 क्वांटिटी, द वे यू कॉल योर सिबलिंग्स कि मेरे लिए चाय ला, पानी ला, वैसा वो बोलेगा क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को? No, ma'am. नो. सो देयर मस्ट बी अ ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जिसको आप एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर बोलोगे. दिस सॉफ्टवेयर के थ्रू परचेज डिपार्टमेंट विल जनरेट समथिंग. What is that called? What is that record is called? Purchase request. Purchase requisition. PRN or MRN. They will generate PRN or MRN from this system. And this PRN and MRN, they will circulate it to purchase department. इसमें क्या लिखा रहेगा ये PRN and MRN में? What is the item they need and कितना quantity item चाहिए, yes or no, so that purchase department को मालूम चलेगा कि कितना item चाहिए और कितना quantity में चाहिए. ठीक है, now can production department tell the purchase department कि मुझे 10 रुपए का item चाहिए या 50 रुपए का item चाहिए? क्या लगता है आपको? क्वांटिटी बताएगा, बस क्वांटिटी बताएगा. Whether can purchase department tell the can production department tell the purchase department that at what rate you should be buying goods for us? No, ma'am.
So Just the have a quantity. requirement of purchase department, production department is only to tell what item you need, what is the description, उसका क्या width होना चाहिए, height होना चाहिए, this and that, plus कितना quantity चाहिए. It is the purchase department who will call multiple suppliers and find out कि उसके पास वो item है क्या, right? Then they will ask कि अगर आपके, if you have those items, then they will ask for quotations. There is something called as quotations. These quotations they will receive, right? Quotation 1, quotation 2, quotation 3. Minimum of 3 quotation requirement होता है. Yes or no? Minimum of 3 quotation. For example, if you want to buy AC in for your own house, अगर आपको AC install करना है तो at least you will check with the LG, Panasonic and like different companies, right? और ऐसा घर के बाजू में स्टोर है, वहां से तो नहीं उठा के ले आएंगे तुरंत. You will see like you know different AC का performance कैसा. You will call your relative, check कि भाई तुम्हारे घर पे कौन सा AC लगा, अच्छा हवा आता है, blast भी कम है, this and that. So you will take the quotations from different suppliers. Okay, great. So how many documents have you seen so far? One, PRN or MRN. एंड सेकेंड कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर, थर्ड पार्टी. ये वर्ड्स याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि ये अपने आंसर्स में लिखे होंगे, फिर अपने को समझेगा नहीं कि क्या है. ठीक है. पीआरएन इज जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम, कोटेशन इज रिसीव फ्रॉम द थर्ड पार्टी. कोटेशन हम नहीं जनरेट करते. ओके कूल. अब इसके पास में कोटेशन आ गया. कोटेशन के बेसिस पर ये सेलेक्ट करेगा कि यार हाँ यार ये बंदा आइटम भी सही दे रहा है, उसका क्वालिटी भी बराबर है एंड रेट भी बराबर लगा रहा है. चलो लेट मी सेलेक्ट सप्लायर 2. ठीक है. Out of 3 he has selected supplier 3. Supplier 3 को can he call and tell supplier सुनना ये आइटम भेजेगा क्या 50 क्वांटिटी 10 रुपए के रेट पे? Can I just call the supplier and tell? मेरा टाइम सेव हो रहा है. Can I do that? Guys? No, ma'am. Purchase department will generate PO. What is the full form of PO? Purchase order. The way you place order on the Amazon app or the Myntra app, that is called the purchase order for that supplier. ठीक है. ये बंदा सेम पीओ को क्या बोलेगा? कस्टमर ऑर्डर. उसके लिए तो आप कस्टमर हो, आपका क्लाइंट कस्टमर है. सो फॉर दैट सेम डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड द कस्टमर ऑर्डर. फॉर यू इट विल बी कॉल्ड द परचेज ऑर्डर. नाउ द परचेज ऑर्डर विल कंटेन व्हाट? आइटम, क्वांटिटी, रेट. रेट अग्रीड हुआ होगा ना, रेट कंटेन करेगा, प्लस अदर टर्म्स, पेमेंट टर्म्स एंड कुछ और अदर टर्म्स होंगे. तो इट विल हैव ऑल दीज थिंग्स. यस और नो? ये सारी चीजें होनी चाहिए पीओ में. ओके. डू यू नॉट थिंक कि ये पीओ सप्लायर के पास भेजने से पहले टॉप मैनेजमेंट में या किसी को तो भी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने किसी ने तो भी अप्रूव किया होना चाहिए? कंपनी के बाहर परचेज डिपार्टमेंट वाले उनका मन करेगा तो किसी को भी पीओ परचेज ऑर्डर देते बैठेगा क्या? नहीं. देयर हैज टू बी सम कंट्रोल ना. टॉप मैनेजमेंट में बैठने वाला कोई व्यक्ति तो देखेगा कि लाइक हाउ मेनी पीओज आर बीइंग रेज्ड टू द सप्लायर्स. Yes or no? I will give you another example. Are you all listening to me? I am one of the employee of this same company. I have a laptop. जिस लैपटॉप के ऊपर मेरे बच्चे ने पानी गिरा दिया. I have a laptop which is given by the company जिसमें मेरे बेटे ने पानी गिरा दिया. मेरा कोई बेटा नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन. ठीक है. पानी गिरा दिया, लैपटॉप खराब हो गया. Now I know this laptop was given to me only 6 months ago. So what I did, I called one of my friend in the purchase department and told, listen, Ayar, this happened and I can't tell it to anyone. So can you please place a purchase order to supplier and get a laptop for me? What was the company policy? 3 साल के अंदर not a single laptop will be replaced or changed unless उसका condition change हो, like condition बहुत खराब हो गया, right? I did not want to tell anyone that I had damaged the laptop which I have received 6 months ago, a brand new laptop. तो मैंने directly setup किया और बोला PO raise कर दे. Like suppose laptop HP का laptop था, I have bought also, directly I have started using it. This is misutilization or misuse of the company's fund. So definitely there will be a authorization of the PO. Authorization of the PO from the management. Yes or no? Controls कैसे implement करता है एक entity, समझ में आया आपको? This is one of the example. एक बार ऑथराइजेशन हो गया, सो दिस पीओ विल गो टू द सप्लायर. नाउ सप्लायर अपना मटेरियल रेडी करेगा. सप्लायर ने मटेरियल रेडी किया. सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर विल डिस्पैच द मटेरियल. सप्लायर क्या करेगा? डिस्पैच द मटेरियल. ठीक है.
So once the supplier has dispatched the material, क्या ये material directly production office में जा सकता है? Can the material go directly to the production department? The answer is no. Material will first come to the security gate. ठीक है? So the material which is dispatched, it will be dispatched with invoice. Invoice will contain the item description, quantity कितना भेजा है, what is the rate, एंड उसके बाद में पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, एंड कुछ अदर टर्म्स वगैरह होंगे उसमें, वारंटी क्लेम्स वगैरह, लाइक नो व्हेन यू गेट अ मटेरियल तो उसमें वारंटी वगैरह आता है सप्लायर के साइड से, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होंगी. ठीक है, ओके. नाउ द मटेरियल हैज रीच्ड ओवर हियर टू द गेट. Now it is the duty of the security guard to not let the truck go directly into the warehouse or into the production department without making a gate entry. There has to be a gate entry. Are you getting it? When you go to a big cooperative society, gated society, even you have to make entry at the gate कि आप किसके अपार्टमेंट में जा रहे हो, राइट? दे विल कॉल समवन एट द अपार्टमेंट एंड कॉल कि आपके यहाँ पर ये गेस्ट आए क्या, दैट द पर्सन विल अप्रूव, देन यू ओनली यू कैन गो. सो इफ दिस कैन बी इंटरनल कंट्रोल एट द सोसाइटी, इमेजिन यहाँ तो धंधा चल रहा है बॉस किसी का, इट्स अ बिजनेस, राइट? डज इट मेक सेंस टू यू ऑल ऑफ यू? सो देयर विल बी अ gate entry. This is another document. So how many documents we have talked about? One PRN, second is the quotation, third is the purchase order, fourth is your dispatch with the invoice, and fifth is the gate entry. Right? कितना एक प्रोसेस के लिए कितना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गया? ओके. नाउ द मटेरियल कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम द सिक्योरिटी टू द प्रोडक्शन? The answer is no. The material will come from gate to the warehouse. There will be a person in the warehouse who will check the quality of the goods. Quality and quantity का verification होता है यहाँ पर. Then only this material will be taken into the warehouse. And यहाँ पर racks में they will stack the material. But warehouse में, don't you think the warehouse guy will have to prepare a document or something, how many quantity he has received, quality क्या था and all that? Yes or no? Guys? Yes, ma'am. What is that document called? Good received note. GRN, goods receipt note. So this is the document number 6. Now, once the material has come to the warehouse, now this material will go into the production where the production guy will use it, make it a finished good, then it will sell to the customer, other customer, फिर उसको invoice generate होगा, this and that. Yes or no? Is the process complete? Is the purchase process complete? हाँ? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा ना, तो एग्जैक्टली पेमेंट ये कर. सप्लायर जो है वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है कि वो आपको फ्री में माल बेच देगा, वो यू हैव टू मेक द पेमेंट टू दैट पर्सन, राइट? सो नाउ द इनवॉइसेस along with the GRN, invoices along with the GRN will go to the accounts department. Accounts department will verify few things. Invoice along with GRN copy along with PO copy will go to the accounts department. See, when I say it will go to the accounts department, let's not imagine Baba Adam ka zamana, right? Right now, these things can be seen from the system. Accounts department can immediately go into the ERP system and see कि किसका GRN हुआ है, उसका इनवॉइस का कॉपी, का इनवॉइस कॉपी सॉफ्ट कॉपी होगा, उसका PO नंबर क्या था, उसका आइटम क्या था, उसका क्वांटिटी क्या था, उसका रेट क्या अप्रूव हुआ था, टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल क्या था. All of that the accounts department can see into the ERP system. Yes or no? ठीक है. Now, invoice accounts department will make the book entry of purchase and then उसके बाद में he will make the payment. जो भी डेज होगा, लाइक 30 डेज 60 डेज, जो भी वॉट एवर मे बी द पीरियड, क्रेडिट पीरियड, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा. यस और नो? डिड वी अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंटायरली? एक बार क्लियर हुआ? बेस होना, बेस नीड्स टू बी क्लियर. सी, सेल्स एंड डेटर वाज आस्क्ड इन द एग्जाम वेरी रिसेंटली, आपके मे वाले एग्जाम में आया था, तो दे विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन. आई विल स्टिल टीच यू दैट, बट लास्ट में कवर करेंगे. अभी तक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आई वांट टू डू इट थॉरली विथ यू. आर यू ऑल क्लियर ऑन दीज थिंग्स? इफ यस, लेट्स गो, लेट्स डीप डाइव एंड डू द प्रोसीजर्स. सबसे पहला क्वेश्चन, जनरल प्रोसीजर. ठीक है? व्हाट आर द जनरल procedures, audit procedures for purchases? Guys, someone is on the gate, just give me a moment please.
All right. So if simple questions comes to you, general audit procedures for audit of purchases. So there will be 5 things you will mention over there. First, auditor shall understand. सबसे पहले प्रोसेस समझने का एंड उस प्रोसेस में क्या कंट्रोल पॉइंट्स थे, जैसे मैंने बोला ना, गेट एंट्री आने के टाइम पे यहाँ पर गेट एंट्री होगा तभी मटेरियल विल गो इनटू द वेयर हाउसेस। वेयर हाउस में एंट्री, जीआरएन बनने से पहले उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेक होगा। पीओ जाने से पहले टॉप मैनेजमेंट ने अप्रूव किया था। कोटेशन आने के पहले 3 कोटेशन ला करके उसमें से जो बेस्ट सुटेबल था उससे बाय किया था। दीज आर ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी क्लाइंट प्लेस यू गो, यू अंडरस्टैंड द परचेज प्रोसेस फर्स्ट। ठीक है, एंड कहां कहां पर एंटिटी ने कंट्रोल लगाया हुआ है। सो ऑडिटर शेल अंडरस्टैंड प्रोक्योरमेंट टू पे, जिसको ब्रैकेट में आप P2P लिखोगे, इन जनरल इसको मार्केट में प्रोक्योरमेंट टू पे प्रोसेस बोला जाता है। ऑडिटर शेल अंडरस्टैंड द प्रोक्योरमेंट टू पे प्रोसेस एंड इट्स रिलेटेड कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स इन द एंटिटी। ठीक है, अभी वंस यू अंडरस्टैंड द कंट्रोल पॉइंट्स, व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस, सेकंड पॉइंट आपको बाय डिफॉल्ट आना चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। कंट्रोल समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में यू ऑल्सो डिड दिस गाइज। रिमेंबर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में फर्स्ट यू अंडरस्टूड द कंट्रोल्स, प्रोसेस समझा था, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैम इवैल्यूएट करेंगे टीओसी एंड टीओटी के मतलब। Exactly. So first of all, the moment you understand someone control points, you have to test how effective are the controls. So auditor shall perform test, few samples लेकर के test of controls perform करने का, to know, to evaluate how effective they are. ठीक है, सो सबसे पहले आपने प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, कंट्रोल्स पॉइंट अंडरस्टैंड किए, एंड नाउ यू विल परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू सी हाउ इफेक्टिव दे आर। ठीक है, थर्ड, ऑडिटर शेल नाउ select samples on random basis and examine the transaction, purchase transaction with related, remember, PRN, comma, PO, comma, quotations, comma, GRN, comma, invoice, comma, gate entry, and payment advice. Now, those who have studied SA 505, आपको भी मालूम है कि आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक कर सकते हो यहां पर। External confirmation from the supplier. External अमाउंट confirmation. पेबल में जितना भी अमाउंट क्रेडिटर को पेबल दिख रहा है उसके लिए कैन यू नॉट चेक कि वेदर दैट अमाउंट इज मैचिंग? तो सप्लायर के लाइक यू सेलेक्ट द वेंडर्स, जो भी हाई वैल्यू आइटम्स आपको दिख रहे हैं उसको बैलेंस कंफर्मेशन ले लेने का। obtain balances confirmation from selected suppliers as per SA 505 and request entity for reconciliation in case of, what should I write over here? In case of, कब क्लाइंट को बोलोगे क्लाइंट रिकंसाइल करो?
Discrepancy. In case of mismatches, Discrepancy. Inconsistent outcomes. सो यू कैन राइट एनी कीवर्ड जो आपको याद आता है, ठीक है। मिसमैचेस इन अकाउंट बैलेंस आपको मिलता है, क्लाइंट को बोला क्लाइंट रिकंसाइल करके दो, ये क्या फालतू बात है, ठीक है। देन ऑडिटर shall perform analytical procedures such as trend analysis, consumption analysis, ratios, etc. as per SA 520. It's a good procedure. Like आराम से 4 to 5 marks का this question can be asked and you will be fine. सबसे पहला and simple procedure है. Now that you understand the process, सबसे पहले control point समझ लेना, process समझ लेना, control point समझ लेना, test कर लेना controls को, उसके बाद में select the samples and test of detail करने के लिए check PRN, PO, quotation, GRN, invoice, gate entry, payment advice, etc. Then also obtain the external confirmation from the vendors for the account balances at the year end, and if there are differences, ask for the reconciliation from the client. And last में you perform the analytical procedure to see the cost of purchase जो है वो reasonable है या नहीं है। फटाक से याद करो, मन में रिकॉल करो all the points, 5 points, and underline the keywords, हाँ, जिससे आपको ये आंसर याद आए। ओके, अगर सपोज I'll ask you a question, suppose like I have made suppose 1 lakh purchases during the year. I have made 1 lakh, मेरे बिजनेस का ऑडिटर है आप सब, and I have made 1 lakh purchase transactions during the year, जिसमें से 95,000 transactions are the genuine transaction, 5% are like I have booked the fake invoices. चलेगा क्या आपको? Why? 95% तो करेक्ट किया है ना, 5% only if I am booking fake transaction. What is the problem do you have? इतना तो चलता है ना यार, नहीं चलता? That means when you are the auditor and you are wearing that auditor ka specs, you will not allow entity to show any transaction that has never occurred. पीएनएल का, पीएनएल आइटम्स का एक बहुत बड़ा असर्शन होता है, that is occurrence. Unless and until the transaction has occurred, you will not book it. Occurrence does not mean payment. For example, if you have taken a property on rent, you have not paid the rent for 5 months. Will you still book the rent? Because you have utilized the property, rent liability is there on your head. So the transaction has already occurred, boss. Payment is a different thing. This is something that you have learned in your class 11th itself. Yes or no? How do you book the accounting entry? On the accrual basis. Transaction has occurred, you book the transaction. Something that has never occurred, why will you book that? Because I want to manipulate my books, I can do anything. Be very open-minded when you go to the client place. हाँ, client करता है ऐसा सब कुछ. Yes or no? ठीक है? Okay. Can I do this? Just tell me yes or no. Can I do this? Can I book 80,000 invoices, purchase invoices this year and 20,000 in the next year? Can I just omit 20,000 कि यार बहुत हो गया, मेरे अकाउंटेंट का हाथ दर्द कर रहा है अकाउंटिंग एंट्री पास कर करके, बेचारे के हाथ ऐसे हो गए. Can I do something like this? Can I omit booking the transaction? No, ma'am. It will not be complete. So when I show you my financial statement ki dekho baba, I have made my cost of purchase is 10 crores. That means I'm making an assertion that these transaction which amount for 10 crores, ये transaction occur भी हुआ है और complete भी हुआ है. I have not postponed, delayed, omit, booking the cost of purchases. So ICAI will ask you 2 specific questions. How do you verify the occurrence and how do you verify the completeness? ठीक है? Before we go into that question, take 2 to 3 minutes break. If you want to use loo or anything, drink water, drink it, come back, and then we'll solve those 2 questions. चलो फटाक से. Now, you have to verify.
Any doubts? Anything? नहीं, shall I start? Now you want to verify the occurrence of purchase transaction. ठीक है, चेक करते हैं occurrence कैसे हो सकता है. Now everything that I will write here, you will know exactly क्या बात हो रही है. लेकिन कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना मैं पहले से आपको बता देती हूँ. ठीक है, यू रिमेंबर हमने ऊपर ये थ्री कोटेशन मांगा था. You remember this process that you had asked for 3 quotation from the supplier, 3 different suppliers. Then you selected supplier number 2 because उसका quantity quality rate आपको बराबर जम गया था. So next time if you want to buy item A again, will you again ask for the 3 quotation? The answer is no, right? Once you know कि आपको, like how do you buy clothes? Once you know कि ये brand का आपको पसंद आ गया, next time you will place the order to that brand only. No, ऐसा ही होता है, right? हाँ ठीक है, ट्रायल एंड पर्सनल लाइफ में हम ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है. कंपनी में वंस यू हैव फिक्स द सप्लायर, देन यू हैव फिक्स द सप्लायर. अनलेस एंड अनटिल आपका सप्लायर के साथ कुछ भसड़ हो जाए बाद में और एंड ऑल दैट, you will stick to that supplier. So entity will now make a supplier register. There will be a supplier register. You remember the employee register? Yes or no? Employee benefit expense mein, did we check the employee register? In which all the new employees, all the leavers, all the containing employees data was there. In the similar way, the entity will maintain supplier master. It's a big Excel file that they will make, in which whatever supplier they onboard, the process is called onboard. Once एक बार agreement हो जाता है कि next 5 years के लिए, 3 years के लिए you will supply the material. ठीक है, so they will whatever supply, suppose they buy 10,000 different items in a year, तो उनके पास में supplier होगा यार हर एक आइटम का. ठीक है, so सबसे पहला आपको देखना है ना कि ट्रांजेक्शन जो है वो बराबर है. सबसे पहला क्लाइंट से आस्क फॉर द सप्लायर मास्टर. Every supplier should have a GST number, valid GST number. Yes or no? Take the supplier master and check whether the GST number mentioned in the supplier master is valid or not. हो सकता है there can be 10, 20, 100 supplier into that supplier master जिसका GST नंबर ही मिसिंग है. ऐसा कैसा हो सकता है GST रजिस्ट्रेशन नहीं है? बिजनेस कर रहे हो ना, पर्सनल लेवल पे थोड़ी यू आर बाइंग एनीथिंग कि GST नंबर नहीं देखेंगे तो चलेगा. धंधे में कैसे चलता है, आप फिर क्रेडिट कैसे लोगे आप परचेजेस का? यस और नो? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कैसे क्रेडिट मिलेगा आपको? कॉस्ट बन जाएगा आपके लिए सब कुछ वहां पर. So obtain supplier master to see if there are any fictitious vendors have been included in the master. occurrence देखना है ना कि फेक परचेज है या नहीं है. सबसे पहले चालू करना from the master itself. First point, auditor shall verify whether any fictitious vendors have been included in supplier master. Now you can complain the company can have so many suppliers. सबका देखना है, सबका देखना है. ठीक है, हर एक जगह रोने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी पढ़ाई करने के लिए हर सारा चैप्टर पढ़ना है क्या? सब कुछ ही देखना पड़ता है. ठीक है, ऑडिट कर रहे हो आप वहां पर, गलत ऑडिट रिपोर्ट मत बना के आ जाना. सब कुछ सारे सप्लाई चेक करो प्रॉपर, उसका जीएसटी वीएसटी नंबर देखो, वैलिड एड्रेस होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए, उसका नाम बराबर दिख रहा है क्या. ठीक है. सेकेंड, verify the existence of vendors and evaluate whether purchases are made from vendors by following vendor selection process of the entity. रिमेंबर हमारे केस में क्या था, वेंडर सिलेक्शन पॉलिसी कम से कम 3 कोटेशन आना चाहिए, उसका रेट, क्वांटिटी, टर्म्स ऑफ कंडीशन मैच होना चाहिए था. तो अगर सपोज किसी कंपनी में होगा 2 कोटेशन से काम हो जाता है, 3 कोटेशन से, 5 कोटेशन से, सो एवरी कंपनी विल हैव देयर ओन पॉलिसी.
सो यू हैव टू वेरीफाई कि वो एग्जिस्टेंस उस वेंडर्स का चेक करो एंड ऑल्सो इवेल्युएट कि भाई परचेजेस जो है वो दे आर मेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट ओनली बाय फॉलोइंग द वेंडर प्रॉपर वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस. Third, verify whether POs are raised based on valid PRN, वैलिड परचेज रिक्वेजिशन नोट के बेसिस पर ही पीओ रेज हुए हैं. एंड पीओ सप्लायर को भेजने के पहले क्या किया था हमारे प्रोसेस में, हमने पीओ जनरेट PO करके उसके बाद में, authorization. सॉरी, अप्रूव अप्रूव Authorization. करवाया था. अप्रूव करवाया ऑथराइज. था. सो एंड आर अप्रूव्ड बाय डेलीगेटेड अथॉरिटी. कोई ना कोई बंदा होगा इस कंपनी में जिसको ये प्रोसेस डेलीगेट करके ये दिया होगा उन्होंने. ठीक है, बेस्ड ऑन वैलिड पीआरएन ही पीओ रेज्ड होना चाहिए. ठीक है. नाउ वेदर गुड्स entry is made at the gate on receipt of goods. और गेट एंट्री जब होता है ना तो कौन से ट्रक से आया, कौन से टेम्पो से आया, उसका नंबर क्या था, लाइक वेंडर ट्रांसपोर्टर कौन था, वो सारा चीज भी गेट रजिस्टर पे जाता है. ठीक है. फिफ्थ, वेरीफाई GRN are generated only after proper quality inspection by stores staff. ठीक है. Then verify whether purchase invoices are approved by delegated authority before purchase booking and payment to supplier. ठीक है. अकाउंटिंग में बुक होने से पहले, पेमेंट रिलीज होने से पहले सप्लायर को हर लेवल पे चेकिंग होती है. अकरेंस के अंदर ना कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हैं. Purchase transactions shall be booked based on original purchase invoice. जो जो परचेज इनवॉइस सप्लायर से आया वो ओरिजिनल कॉपी पर होना चाहिए. पता चलो कुछ तो सॉफ्ट कॉपी, जीरोक्स कॉपी, कुछ तो ऐसा फर्जी कॉपी के बेसिस पे परचेज इनवॉइस बुक हो रहे अकाउंट्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. परचेजेस shall be booked only when can you tell me what I should write in this box? Risk and reward transfer. क्या बात है यार.
When you also make the sales का भी accounting recognition या revenue recognition आप तभी कर सकते हो when the risk and reward has been transferred to the customer. And in the similar way, purchases, you can book the cost of purchase, you should book only when the risk and reward has been transferred to you, your client, that means, right? Third, ITC, input tax credit should be booked into respective ledger. And last, have you studied SA 550? What is it about? Related parties. So suppose your client is buying goods or raw materials from the related party, it should be approved by some authority. Board approval कहीं ना कहीं पर होना चाहिए, right? So purchases from related party, check approval by board. If there is a policy की approval कौन करना चाहिए related party का, तो उस case में you will check the approval. So ये कुछ special considerations होते हैं when you check the occurrence. Then comes the last questions of the purchase transaction. How will you verify the completeness of purchase transaction? And what is last word in the fourth point? Approval by? Board of directors. Ma'am, can you show the second point? Upar. Verify the existence of vendor and evaluate whether purchases are made from vendors by following vendor selection process of the entity. Before I teach the completeness बताने के time पे ना, I need to tell you a very important process called as assertion called as cutoff, right? So एक बार occurrence का सारा point, occurrence और इसके पहले जो भी सारा point पढ़ा है आपने पूरा वापस read करो, recall करो, आपको आ रहा है क्या? Because once वो आ रहा होगा तभी I will be able to add a new concept into your mind. When you are checking when you are verifying the assertion of completeness कि कोई transaction complete होना चाहिए, so completeness के लिए you have to apply the cutoff procedures. ठीक है? अभी cutoff procedure में I'll explain you both from the purchase point of view, purchase से and sales से. भी sales में won't come in the exam because अभी recently आया था, but logically you should understand what is cutoff procedure. Those who already know, आप बैठ करके ऊपर वाला याद करो सब. Company purchases goods worth rupees 10 lakhs on 30th March 2025, but does not record the purchases or liability until 5th April 2025. Goods were received on 30th March itself. That means R&R was transferred to the company. Why this fraud? To overstate the
profit for financial year 24-25 ठीक है। सो एक टाइमलाइन आप ड्रॉ करोगे इसमें यहाँ पर परचेजेस के लिए। PO was generated on 30th of March. PO was generated on 30th of March, ठीक है। Now the supplier nearby है, like you know within 2-3 kilometers ही supplier का factory है। So supplier had this material ready with them, ठीक है। supplier के पास material था, supplier dispatched material on 30th March. Gate entry on 30th of March. Gate entry के बाद में warehouse GRN by warehouse on 30th of March, क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन बस हो गया था। इनवॉइस इन अकाउंट्स was booked on 5th अप्रैल। द मोमेंट सामने वाले ने 5th अप्रैल को इनवॉइस बुक किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का परचेज बन जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26। आइडियली ये परचेज था कब का? फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। आप लॉजिकली सोचो, जानबूझ करके 6 days इनवॉइस बुक डिले किया है कंपनी ने, क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा के दिखाना था। सो जितना भी 30th मार्च और 31st मार्च का परचेजेस है ना, रिसीव किया, सारा मटेरियल फैक्ट्री में आया, गेट पे थोड़ी छोड़ देंगे, फैक्ट्री पर आया, GRN भी हुआ, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बिल ही बुक नहीं किए। द मटेरियल, द मोमेंट आपके फैक्ट्री में मटेरियल आया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया बॉस, यू शुड बुक द इनवॉइस ना, इनवॉइस आ गया है आपके पास में, दे आर डिलेइंग द परचेजेस। और ऐसा सिर्फ एक इनवॉइस नहीं है, ऐसे 10 लाख का एक इनवॉइस मिला, ऐसे पता चलता है 5-6 करोड़ का परचेजेस जो है, जो लास्ट 2 days में आया होगा, उनको रिसीव हुआ होगा मटेरियल, वो सारा उन्होंने उठा करके अगले फाइनेंशियल ईयर में पुश कर दिया। ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ आई टोल्ड यू कि टेक सम फ्यू सैंपल्स, और जब फ्यू सैंपल्स लोगे तो स्पेशली ईयर एंड का, तो मैम आप क्या आपका करना, सॉरी आवाज बहुत कट रहा है, इज देयर अ बहुत लैग? ओके, बफर हो रहा है, बहुत आवाज।